See, uh, uh, we we have learned business entity, then we learn money measurement. After that, cost concept. The historical cost would be recorded in the cost concept. That is acquisition cost. When you purchase the asset, that cost you have to record in the accounting books. So here I put the example: furniture is purchased for rupees 3 lakh. The same cost has been recorded in the books. We could not put the any kind of market value of that asset of that furniture or whatever you purchased in fixed asset. That will not be considered. Only you have to put the acquisition cost, or we can say historical cost. Today we'll see the consistency concept. We'll see consistency concept, and in that, what consistency we have to maintain in the what we say in the accounting records, in the keeping the books of accounting. Let's see consistency में क्या है. Any policy adopted for accounting should be continuous. Whatever you adopt, whatever methods, whatever the system, or whatever the what we say uh, uh, technique, that technique, that methods should be continue for more than 5 years or up to 10 years. It means that the records would be systematically maintained. See, any policy adopted for accounting should be continuous or consistent. There is need of consistency throughout the business, and it need not be changed generally. उसको चेंज नहीं करना है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए. तो उसको कंटिन्यूअस, उसमें कंसिस्टेंसी रखना है. फॉर एग्जाम्पल, you adopted in your company a fixed installment method for charging depreciation. ये आपने ये डिसाइड किया है कि आपको क्या करना है. इंस्टॉलमेंट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हम जिसको कहते हैं, तो ये आपने अडॉप्ट किया. तो इट इज सुटेबल फॉर दैट asset, and it would not be changed. It is fixed for the end of estimated life of an asset. It is fixed from the beginning till the end of estimated life of asset. It would never be changed within 10 years, within 5 years. So that is called consistency. It means you will not change that, and its impact on accounting record. When you are keeping the accounting books, when you are recording accounting books, that would be systematically. इसमें सिस्टमैटिकली एक सिस्टमैटिकनेस आता है. तो ये जो है, देखिए अकाउंटिंग को क्या चाहिए, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड चाहिए. अकाउंट रिक्वायर्स सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. तो when you change the methods after 2 years, after 4 years, after 6 years, it means its impact on accounting records. ये बार बार मेथड्स चेंज कर रहे हैं तो अकाउंटिंग का रिकॉर्ड सिस्टमैटिक नहीं बनेगा. उसमें हम कहेंगे कि जिस प्रकार से, जिस मैनर से अकाउंटिंग का रिकॉर्ड कीप करना चाहिए, उस मैनर से हम वो रिकॉर्ड नहीं कीप कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज वी आर नॉट following, or we are not using one method or one technique for more than 10 years, more than 5 years, 5 साल या 10 साल वो हम टेक्निक वो मेथड यूज नहीं कर रहे हैं.
तो इसका अर्थ ये होता है कि हम अकाउंटिंग का रिकॉर्ड सिस्टमेटिक नहीं मेंटेन कर रहे। एक साल में एक साल के लिए हमने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यूज किया, दूसरे साल के लिए हमने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड reducing balance method use किया, and third year we are using the annuity method or we are using the sinking fund method. How it is possible to keep the accounting record in a best way? हो सकता है कैसे? नहीं। तो आपको एक ही मेथड जो है कुछ सालों तक उसको कंटिन्यू करना है। दैट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, यानी कि अकाउंटिंग में उससे क्या होता है, सरलता आती है। अब देखते हैं कॉन्जर्वेटिज्म। कॉन्जर्वेटिज्म इज वन ऑफ द प्रिंसिपल दैट conservatism is for to expect the future losses. It is not for the future profit. It is assumed that you have to expect future losses, not a future profit. While recording the business transactions, we have to anticipate no profit, no loss. No profit, but provide for all possible losses. Sorry, no profit, no loss. It's a break-even point. Sorry for that. शब्द निकल गया, निकलना नहीं चाहिए था। yes. तो यहाँ पे आपको खाली मैंने एग्जांपल दिया था आपको, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते टाइम मार्केट प्राइस भी देते हैं और क्या देते हैं, उसका कॉस्ट प्राइस भी देते हैं। तो हमें कौन सा कंसीडर करना है, विच एवर इज लेस, उसमें जो कम है उसको हम कंसीडर करेंगे। तो इट एनकरेज द सर्टेन secrets reserve by making excess provision to prevent losses। तो इसके लिए है कि हम एक सर्टेन रिजर्व क्रिएट कर सके फॉर व्हाट, तो जो प्रोविजंस हम करके रखेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, लॉस को प्रिवेंट करेंगे। See, the income statement may show lower income and the balance sheet overstates the liabilities and understate the assets। इनकम स्टेटमेंट कभी कभी लो इनकम शो करता है, या तो बैलेंस शीट जो है ओवर स्टेट्स द लायबिलिटीज एंड अंडरस्टेट द एसेट्स। बैलेंस शीट क्या करते हैं, कभी कभी लोग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज ज़्यादा दिखाते, एसेट्स कम दिखाते। दिस पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग इज आस्किंग द अकाउंटेंट टू प्ले सेफ while writing the accounts। तो ये इसमें कंजर्वेटिज्म ये गाइड करता है कि आपको सेफ अकाउंटिंग कैसे करना है। तो सेफ अकाउंट करने के लिए जो एक्चुअल अमाउंट्स है उसे रिकॉर्ड करो। आपको एक ही प्रिंसिपल नहीं फॉलो करना है, मनी मेजरमेंट फॉलो करना है, कॉस्ट, कंसिस्टेंसी, बिजनेस एंटाइटी, कंजर्वेटिज्म, तो ये आपको फॉलो करना है। तो उसमें कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि आप फ्यूचर लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। दिस पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग इज आस्किंग अकाउंटेंट टू प्ले सेफ। एग्जाम्पल, द क्लोजिंग स्टॉक इन द फैक्ट्री इज वैल्यूड एट ₹25,000 at a cost price and ₹35,000 at its market price, but while recording in the book's value, the value of ₹25,000 will be considered being the lowest of all। Okay, यानी कि लोवेस्ट वैल्यू कंसिडर किया है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि when we record the market value of the closing stock, it is given in the example like 35,000. When you put that value, its impact on the gross profit. Gross profit will be increased. Gross profit will be increased, and that gross profit we have to brought down on the credit side of profit and loss account, and because of that, net profit will be increased.
बाय रुपीज 10,000, 10,000 से नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा. सो द मैनेजर विल सी एंड वेरीफाई दैट वेयर इज दैट 10,000. अभी तो एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड है, वो प्रॉफिट हमें पक्का मिलने वाला है क्या, फिक्स आने वाला है क्या, नहीं. तो फिर व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग दिस, उसको हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो प्रॉफिट हाथ में है क्या, नहीं है. दिखाई दे रहा है आपको प्रॉफिट, नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्यों उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं. आपको मिल रहा है क्यों प्रॉफिट, एग्जैक्ट मिलने वाला है क्या, नहीं. ऐसे मार्केट की वैल्यू बढ़ गई क्लोजिंग स्टॉक की, तो ऐसे अकाउंटिंग नहीं चलेगा, ऐसे अकाउंटिंग नहीं हो सकता. आप वो प्रॉफिट को फील करोगे, नहीं. आप देख सकते हो वो प्रॉफिट को, नहीं. खाली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अंदाजे बोल रहे हैं कि होगा ऐसे, तो वैसे अकाउंटिंग नहीं हो सकता. वैसे अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मत कीजिए. तो आप क्या करो, जितना कॉस्ट है उतना ही रिकॉर्ड करो. तो फ्यूचर में आप लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं. तो ऐसे बिजनेस का जो अकाउंटिंग है वो होना चाहिए. एक कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि फ्यूचर लॉस इज टू बी एक्सपेक्टेड, नॉट अ फ्यूचर प्रॉफिट. फ्यूचर प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया तो बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट दिखाई देगा, और प्रॉफिट दिखाई खाली रिकॉर्ड में दिखाई देगा लेकिन हाथ में प्रॉफिट नहीं आएगा. सो दैट इज कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म गाइड करता है कि आप जो है आप फ्यूचर लॉस एक्सपेक्ट करो, फ्यूचर प्रॉफिट नहीं. अब गोइंग कंसर्न, is there any doubt in that two principles, two concepts? आपको डाउट्स है? यस, नो सर. समझ रहा है संकेत? यस Yes, सर. sir. उषा? Yes, sir. गुड. सुचिता? Yes, sir. गुड. ऋषिकेश? ऋषिकेश लोखंडे is there. There are two Lokhande. One is Suchita and other one is Rishikesh. Rishikesh, I think he started my lecture and he is doing something. बराबर है, ऐसा ही होता है. ओके, नो सर प्रॉब्लम. लेक्चर कर रहा हूँ सर. कर रहे हैं. गुड गुड गुड. दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. थैंक यू फॉर अटेंडिंग my lecture. Going concern, it is the basic assumption that business is a going concern and will continue its operations for future. It means business has a long-term life. Business has a long-term existence. Business is not for a short-term life. Going concern concept influences accounting practices in relation to valuation of assets and liabilities. Accounting practices we consider when we are doing accounting practices, when we are keeping accounting records, keeping accounting books, that we understand that business is for a long time. Depreciation of the fixed assets, treatment of outstanding and prepaid expenses, and accrued and unearned revenues, ये सारे जो है डेप्रिसिएशन है, ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड prepaid expenses and accrued and unearned revenues, these all things are under the going concern. For example, assets are generally valued of historical cost. Yes, any increase or decrease in the value of assets in the short period is ignored. Yes, suppose I purchased asset like I purchased, suppose, uh, motor van. I purchased motor van before 1 year. एक साल पहले मैंने मोटर वैन परचेस किया एंड द कॉस्ट ऑफ दैट वैन was rupees 2 lakh, and
That cost I recorded, I put in the accounting books. But now the value of that motor van, or what we say, the cost of that motor van is increased in the market. Can I put that value in the accounting books? No, I could not put that value because I already record the historical cost. अब बाद में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, नो मैटर, इट डजेंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता है. आपने जो कॉस्ट पहले रिकॉर्ड किया है ना, वही इम्पोर्टेंट है. तो बिजनेस में ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी आते हैं, इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, डिमांड सप्लाई में शॉर्टेज आता है. तो क्या आप असेट के मार्केट प्राइस कर सकते हैं, असेट का वैल्यूएशन कर सकते हैं उस बेसिस पे? नहीं कर सकते. तो गोइंग कंसर्न यानी कि बिजनेस का ये जो साइकिल है, इस सालों साल चलते रहेगा और इसी मैनर से चलते रहेगा. तो वो मैनर है सिग्निफिकेंट मैनर. जैसे कि आप रेवेन्यूज या तो अनअर्न या तो ड्यू, नॉट ड्यू, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, तो ये आप रिकॉर्ड करते ही रहते हैं. तो यानी कि लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो हम करंट ईयर में दिखाते हैं, राइट. जो प्रीपेड है वो भी दिखाते हैं हम, यानी कि अगले साल के लिए एक्सपेंसेस पेड किया है, दैट इज पेड इन एडवांस, वो भी रिकॉर्ड करते हैं हम. दैट इज गोइंग कंसर्न. What happened in past that you have to record in present, what will be happen in future that you have to put in the present, that is going concern. Yes. And next, realization, what you have to realize the actual value of what we say income, that is realization. Income is recorded when it is realized. When you feel that you got rupees 2 lakh from the sale, that is realization. You can realize, you can feel, you can touch that amounts. आप देख सकते, फील कर सकते, रियलाइज कर सकते. नहीं तो फिर हम उसको कहेंगे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. तो अकाउंटिंग में रियलाइजेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है. आइदर इट इज रिसीव्ड और अर्न, वो रिसीव हुए या तो अर्न हुए. लेकिन रेवेन्यूज जो है, रेवेन्यूज अर्न भी होता है, रिसीव्ड भी होता है. कमीशन अर्न हमेशा बोलते हैं, कमीशन रिसीव्ड हम बहुत मिनिमम टाइम बोलते हैं. आर कंसिडर्ड एज अ रिकॉग्नाइज्ड. देखिए, रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन सेल आर अफेक्टेड और द सर्विसेज आर रेंडर्ड. देखिए, जब सेल होता है तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम. रिकॉग्नाइज इट मीन्स टू आइडेंटिफाई दैट how much revenue we got from the sale, how much revenue we collected from the sale. So when you actually see the revenue, or when the actual amount credited in your account, that time you can feel I got such a revenue from the sales, and that is the realization. Sales revenues are considered as recognized when sales are affected during the accounting period, or that is to be happen in the accounting period. That would not be happen without accounting period. It must be happen in accounting period, irrespective of the fact whether cash is received or not. Irrespective fact यानी कि cash received हुआ या तो नहीं हुआ, so that is matter. यदि कैश रिसीव नहीं हुआ है तो आप रियलाइज नहीं कर सकते. दैट इज नॉट रियलाइजेशन, इट इज नॉट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. एग्जाम्पल, a company gets an order for sale of goods rupees 1 lakh in May 2017. Goods of only rupees 60,000 are sold and delivered in June 2007. Cash is received rupees 60,000, and in September 2017, as per the principle of realization, sale is to be recorded in June 2017. Yes,
यानी कि जब आपने वो सेल किया था, सेल कब किया था, जून में किया था, कितने का किया था, 60,000 का, बट यू रिसीव्ड द अमाउंट इन द मंथ ऑफ सितंबर 60,000. It means that you can realize, you are realizing that you got the amounts received from the sale, that you can realize, that you can feel. So that is realization in a simple manner, in a simple way. Then next, accrual. Accrual, it means simple way, two statements uh, I would like to say. First one, due but not received. Due but not received. Uh, Payable but not paid. Payable but not paid. Due but not received. Payable but not paid. These are two statements which are to be considered in accrual. Income is recorded when it accrues, earn, and expenses are recorded when they accrue. ऐसा इनकम के बारे में भी हो सकता है, एक्सपेंसेस के बारे में भी हो सकता है. एक्सपेंसेस पेएबल है लेकिन पेड नहीं किए हैं. इनकम रिसीव्ड होने वाला है, रिसीवेबल है बट रिसीव्ड नहीं हुआ अकाउंटिंग पीरियड में. अकाउंटिंग पीरियड में क्या होता है, सपोज देयर इज 31st March, द what we say, the date of preparation of financial statement, balance sheet. Up to that date or before that date, that expenses or that income which are not occurred, और which ट्रांजेक्शंस हुआ है लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ है, एक तो पेड नहीं हुआ है. तो आपको क्या करना है, देखिए, तो आपको एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है, आपको इनकम रिकॉर्ड करना है. अंडर विच, अंडर एक्रूअल कॉन्सेप्ट. एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको रिकॉर्ड करना है. ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड आर टू बी कंसिडर्ड, are to be considered irrespective of the fact, irrespective of the fact. तो एक fact है that will be happened in future, or that will be received in future. The revenues are received in cash or not, or expenses are paid in cash or not. कैश में पेड होने वाला है, कैश में रिसीव होने वाला है, या तो नहीं होने वाला है, बट वो रिकॉर्ड करना है. एग्जाम्पल, ए कंपनी इन्वेस्टेड ₹1 lakh with a bank for 1 year on 1st October 2015. Bank has to pay interest at 10% per annum. बैंक को क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है. कितना, 10% per annum on its maturity. That is 30 September 2016. अब देखिए कब इन्वेस्ट किया है, 1 अक्टूबर को इन्वेस्ट किया है. अब 1 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर 2016, एक महीना होगा, राइट, एक साल होगा, सॉरी. 1 अक्टूबर 2015 टू 30 अक्टूबर 2016, दैट विल बी 1 year. ओके. अभी ये इंटरेस्ट का ड्यू डेट है, इसी ड्यूरेशन में इंटरेस्ट पे करना चाहिए, राइट. अब ये इंटरेस्ट का ड्यू डेट अलग है और आपका बैलेंस शीट बनाने का जो ड्यू डेट है वो अलग है. देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स. तो बैलेंस शीट के जो डेट है 31st March, यदि वो पीरियड उससे ज़्यादा है, उससे अलग है, तो कितने महीने के लिए अलग है, वो महीने का ड्यू, वो महीने का रिसीवेबल है या तो पेबल है, वो आपको कैलकुलेट करना है. हम कैलकुलेट करते हैं ना, जैसे कि 4 महीने का इंश्योरेंस प्रीपेड है, 2 महीने का
रेंट आउटस्टैंडिंग है, राइट, लाइक दैट। तो उसी प्रकार से तो उसको क्या कहेंगे हम, इट्स ऑन एक्रूअल बेसिस। तो क्या है, एक्रूअल बेसिस पे। जैसे कि यहाँ पे इंटरेस्ट जो है उसका जो मैच्योरिटी डेट है वो 13 सितंबर है, यानी कि 13 सितंबर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा जो आपने इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट किया है आपने, 1 लाख। कितना इंटरेस्ट है उस पर, 10%। कब मिलेगा वो, 30 सितंबर को। आप बैलेंस शीट कब बनाते हैं, यस, 31 मार्च को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा, राइट। एंड 6 महीने का जो अगला इंटरेस्ट है वो आपको एडवांस में मिलेगा, दैट यू विल गेट इन एडवांस। तो वो भी रिकॉर्ड करना है, वो भी आपको रिकॉर्ड करना है। अंडर विच कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, सो दैट विल बी रिसीव्ड। बस आज के लिए इतना ही। इसमें कुछ डाउट्स है तो बोलो। आपने अटेंडेंस दिया है, यस। सर जो कंजर्वेटिव, हाँ हाँ सर, बोलो। जो कंजर्वेटिव कंसेप्ट है हम्म, जिसमें हम मतलब फ्यूचर प्रॉफिट मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अज्यूम नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन जो एक्रूअल, हाँ जो एक्रूअल है हाँ, उसमें हम मतलब पेबल है, जो पे नहीं किया होता लेकिन हम उसकी एंट्री करते हैं ना, तो हाँ, मतलब ये अपोजिट होता है ना ये क्या, एक्रूअल और कंजर्वेटिव, मतलब जो एंट्रीज है वो मतलब वो अपोजिट हुए, मतलब ऐसे। नहीं। अब ये एक्रूअल अलग है, कंजर्वेटिज्म अलग है। कंजर्वेटिज्म में आप लॉस को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कंजर्वेटिज्म में क्या है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, आपने अ, या तो आपका स्टॉक है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, या तो कोई अलग जिसमें आपको प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डोंट एक्सपेक्ट द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को एक्सपेक्ट मत करो आप। यानी कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है ये आप पक्का नहीं बोल सकते, आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। और अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग का जो लैंग्वेज है, अकाउंटिंग का मैनर है, उस पर भरोसा नहीं करता है फ्यूचर में इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसे तो बहुत सारे बिजनेस है, फिर वो बहुत कुछ सोचता है कि फ्यूचर में ये होगा, फ्यूचर में वो होगा। सो दैट विल नॉट हैपन। यदि आपने वैसा एक्सपेक्ट किया और उतना प्रॉफिट नहीं आया, तो फिर खाली आपको प्रॉफिट अकाउंटिंग में दिखाई देगा, आपके हाथ में आएगा क्या प्रॉफिट, हो नहीं आएगा। सो दैट इज कंजर्वेटिज्म। और एक्रूअल में क्या होता है, एक्रूअल में ये होता है कि पास्ट के जो ट्रांजेक्शन्स है उसको प्रेजेंट में भी रिकॉर्ड किया जाता है, और जो फ्यूचर के है उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। अब मैंने कहा ये डेट का ड्यू डेट क्या है, 30 सितंबर है, और आप बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च को बना रहे हैं। तो 6 महीने का जो इंटरेस्ट है आपको, आपने जो इन्वेस्ट किया है वो एडवांस में मिलेगा, एडवांस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपको कहाँ दिखाना पड़ेगा, आपको वो लायबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा। 6 महीने का इंटरेस्ट आपका इनकम होगा, लेकिन अगले 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो आपके लिए लायबिलिटी होगी। क्यों, क्योंकि वो बैलेंस शीट का जो डेट है ना, बैलेंस शीट के डेट के पहले नहीं मिला है। बैलेंस शीट का जो डेट है उसके, हाँ उसके पहले वो इंटरेस्ट आपको मिल गया है, सपोज पहले इंटरेस्ट मिल गया है, तो वो आपके लिए क्या होगी, लायबिलिटी होगी। अगले 6 महीने तक लायबिलिटी होगी। कितने महीने तक, 6 महीने तक। बाद में वो 6 महीने होने के बाद वो आपका इनकम होगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कुछ पास्ट में भी ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, फ्यूचर में भी हो सकते हैं, प्रॉफिट के बारे में भी हो सकता है। आउटस्टैंडिंग इनकम, आने वाला है नहीं आया है, आने वाला है नहीं आया है, दैट इज ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्सपेंसेस करने का है, किया नहीं है, एक्सपेंसेस करने का है, किया नहीं है, दैट इज ऑन एक्रूअल बेसिस। ओके। इसमें ना आप, आपको ये बताता हूँ, कंजर्वेटिज्म में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते आप, वो पक्का आपको मिलने वाला है।
लेकिन इधर आप पक्का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि ये खर्च होने वाला है, ये इंटरेस्ट आने वाला है। समझ गए संकेत? हाँ सर, समझ गया। थैंक यू। इज देयर एनी मोर क्वेश्चन? नो सर। Okay, please leave the meeting. We'll meet in the remedial class on Friday. At what time? That is 11:15. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. Have a nice day.